Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra, and for BA Part 2nd English, we will be reading another poem from the paper first poetry and drama section of our syllabus. Now we will read the fourth poet, who is Gerald Manley Hopkins, G.M. Hopkins, his poem Spring and Fall. So far we have read Tennyson, Browning and Matthew Arnold, all three major poets from the Victorian era. Now we will read about Gerald Manley Hopkins. He was by his chronologically he is from Victorian period, but his poetry was published posthumously in early 20th century by his friend Robert Bridges. So in this video we will learn about the poet and what is this poem about, and about a literary term sprung rhythm. So first we will learn about the poet Gerald Manley Hopkins. This is his picture. Gerald Manley Hopkins. Gerald Manley Hopkins, he was born on 28th July 1844 and he died on 8th of June 1889. So he did not have a very long lifespan, and he was an English poet and Jesuit priest. He was a priest. Jesuit is a type of Catholic church order, so he was from a branch of Catholic Christianity, whose posthumous fame established him among the leading Victorian poets. So his poetry that was published posthumously, that his poetry put him in one of the in the leading Victorian poets, in the list of leading Victorian poets. So his fame rests upon his poetry that was published after his death. His manipulation of prosody. Prosody is actually the study of meter and the practice of meter, how poetry is written in meter. So his manipulation of prosody, he used new techniques like sprung rhythm, escape and in stress, that type of terms. Particularly his concept of sprung rhythm established him as an innovative writer of verse. So he was established as an innovative writer of verse because of his experiment with rhythm, with the syllables and with the feet, and that type of experiments that he used on prosody. As did his technique of praising God through vivid use of imagery and nature. He was a religious person, he was Jesuit himself, so his use of vivid type of imagery and nature, that his techniques of praising God through vivid use of imagery and nature enabled him to be a great poet of modern and Victorian period. Only after his death did Robert Bridges, his friend, began to publish a few of Hopkins' mature poems in anthologies, hoping to prepare the way for a wider acceptance of his style. So उनके मित्र Robert Bridges ने, he started to publish his poem after his death, only hoping for some type of recognition that might come for his friend Hopkins, his dead friend Hopkins. By 1930 his work was recognized. तो उनके जो लेखनी है, उनकी जो poetry है, it was not recognized very early, but after a long time, after almost 40 years, more than 40 years of his death, by 1930 his work was recognized as one of the most original literary accomplishments of his century. It has a marked influence on such leading 20th century poets as T.S. Eliot, Dylan Thomas, W.H. Auden, Stephen Spandau, Cecil Day Lewis. तो ये जो 20th सेंचुरी के फेमस पोइट जो हुए हैं, इनकी पोइट्री, जिनमें से T.S. Eliot तो आपके सिलेबस में ही हैं, सो इनकी पोइट्री पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है G.M. हॉपकिंस का, बिकॉज ही यूज्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ prosody, he used different type of imagery and new techniques that enables him to write poetry in a modern or a type of new coming of the age type of poetry that he wrote. Its well-known works by Hopkins include Binse Poplars, Pied Beauty, The Wind Hover to the Christ Our Lord, The Wreck of Deutschland, and the poem Spring and Fall. These are some of the poems that he wrote. These poems, these are his most well-known works that were written by Hopkins, and these poems show his technique of sprung rhythm, in escape and in stress. What is sprung rhythm? So this is a very small topic that is
topic about literary terms. It is included in your syllabus, and there is normally a question of 5 marks. For 5 marks you have to write a little short note upon the literary terms. So sprung rhythm, what is a sprung rhythm? Much of Hopkins' historical importance has to do with the changes he brought to the form of poetry. तो उनका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है हॉपकिंस की, वो इसी बात पे निर्भर करती है कि उन्होंने पोइट्री में क्या लाए, एक प्रकार का चेंजेस, द फॉर्म ऑफ पोइट्री में जो वो चेंजेस लेके आए, दे मेक हिम वेरी डिस्टिंक्टली मार्क हिम आउट ऑफ अदर पोइट्स. उन्हें अलग नज़र आते हैं वो. दे स्टैंड कम्प्लीटली आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ अदर पोइट्स दैट वर राइटिंग इन द 19th century बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल विच रैन कॉन्ट्ररी टू द कन्वेंशनल आइडियाज़ ऑफ मीटर. उन्होंने जो चेंजेस लाए वो कन्वेंशनल जो आइडियाज़ जो थे, पहले से चले आ रहे जो आइडियाज़ थे, ट्रेडिशनल जो पोइट्री लिखी जा रही थी इन मीटर, उससे वो काफ़ी कॉन्ट्ररी थे, उल्टे थे, विपरीत थे. दिस स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन अ रिपीटिंग फीट. ये जो स्प्रंग रिदम है, इसमें क्या होता है, फीट को रिपीट किया जाता है. मैंने फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी बताया था मीटर के बारे में, फीट के बारे में, अलग प्रकार के फीट को जो कि 2 या 3 सिलेबल्स का होता है. फीट ऑफ 2 और 3 सिलेबल्स, ऐसे फीट को, ऐसे जो हैं उन्हें रिपीट किया जाता है. ऐसे फीट्स को बार बार रिपीट करने से विद स्ट्रेस सिलेबल फॉलिंग इन द सेम प्लेस ऑन द ईच रिपीटिशन. बार बार ये जो रिपीटिशन होता है फीट का, फीटों का जो बार बार रिपीटिशन किया जाता है, वहाँ पे उन्हें जो स्ट्रेस है वो स्पेशल जगह पे आता है हर बार. एक ही जैसे 2 फीट हैं, उनके पहले फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सिलेबल पे अगर स्ट्रेस है वो पास है, तो नेक्स्ट के भी फर्स्ट सिलेबल पे भी स्ट्रेस होता है. स्प्रंग रिदम स्ट्रक्चर अराउंड फीट विद वेरिएबल नंबर ऑफ सिलेबल्स. अलग अलग नंबर हो सकते हैं. आयम्बिक हमने देखा, स्पॉन्डिक देखा, या जो ट्रेडिशनल मीटर है उसमें गिनती फिक्स होती है. जो 2 या 3 सिलेबल होते हैं उनमें, आयम्बिक में या फिर ट्रोइकिक में, उनमें हम देखते हैं कि सिलेबल में जो स्ट्रेस है वो ख़ास सिलेबल पे, फीट के अंदर जो स्ट्रेस है वो एक ख़ास सिलेबल के ऊपर आता है, ना कि यहाँ वहाँ. लेकिन इनके जो स्प्रंग रिदम है उसमें कितने भी मात्रा में सिलेबल हो सकते हैं और कितने ही कहीं भी वो स्ट्रेस जो है वो अपने अनुसार एडजस्ट करके लगाते हैं, जो एक ही जगह पे होता है हर सिलेबल में, जो रिपीट किए गए हैं हर फीट में. स्प्रंग रिदम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड फीट विद वेरिएबल नंबर्स ऑफ सिलेबल्स, जनरली बिटवीन 1 और 4 सिलेबल पर फुट. हर फीट के अंदर, हर फुट के अंदर 1 से लेके 4 तक सिलेबल होते हैं. विद द स्ट्रेस ऑलवेज फॉलिंग ऑन द फर्स्ट सिलेबल इन अ फुट. अक्सर जो है स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल के ऊपर होता है. हॉपकिंस सॉ स्प्रंग रिदम एज अ वे टू एस्केप. हॉपकिंस ने देखा कि अगर मैं इस प्रकार का स्प्रंग रिदम यूज़ करता हूं तो इससे एस्केप द कंस्ट्रेंट्स ऑफ रनिंग रिदम. जो रनिंग रिदम है उसकी जो बाधाएं हैं, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनसे मैं बाहर निकल पाऊंगा, पोइट्री को बाहर निकाल पाऊंगा. विच ही सेड इनएविटेबली पुश्ड पोइट्री रिटन इन इट टू बिकम सेम एंड टेम. उन्हें लगता था कि जो पोइट्री पहले मीटर में लिखी जा रही है वो सेम एंड टेम है, वो बहुत ही टेम सी नज़र आती है, उसमें एकदम से एग्रेसिवनेस नहीं है और वो सेम है, सबकी एक जैसी पोइट्री है. उसमें कुछ नयापन लाने के लिए उन्होंने स्प्रंग रिदम का इस्तेमाल किया. इन दिस वे हॉपकिंस स्प्रंग रिदम कैन बी सीन एज एंटिसिपेटिंग मच ऑफ फ्री वर्स. तो जो 20th सेंचुरी की जो फेमस फॉर्म है फ्री वर्स, उस फ्री वर्स को एंटिसिपेट करते हैं. वो एक प्रकार से इसके प्रीकर्सर हैं. उनकी पोइट्री में हमें वो एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो बाद में फ्री वर्स में दूसरे पोइट्स ने यूज़ किए. द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ, यहाँ जो आपकी पोइम है स्प्रिंग एंड फॉल, उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स में हम देखते हैं, मार्गेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग. तो यहाँ मार्गेट, ग्रीविंग, गोल्डन ग्रोव, ये बड़े बड़े जो शब्द हैं, इनमें स्ट्रेस जो है पास है. मार्गेट आर यू ग्रीविंग, तो यहाँ पे लगातार आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें रिपीट किया गया है. स्ट्रेस, मार्गेट, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस. तो ये जो बार बार पास में जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो फीट आए हैं जो फीट, उनमें देखें कि फर्स्ट जो सिलेबल है उसे स्ट्रेस करके एक प्रकार से एक रिदम पैदा की गई है जो एक स्प्रिंग की तरह है. एकदम से जो प्रसोडी है, जो साउंड है, वो दबता है जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है और एकदम से उसे ढीला छोड़ दिया जाता है. गोल्डन ग्रोव अनलिविंग. सो ये एक प्रकार से उनकी अलग प्रकार की टेक्निक है. सो व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट स्प्रिंग एंड फॉल. ये जो पोएम आपके सिलेबस में है
ये पोएम किसके बारे में है? स्प्रिंग एंड फॉल बाय जेरोल्ड मैनली हॉपकिंस इज़ अ मॉडर्न पोएम अबाउट फिलोसॉफिकल डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जीवन की, मनुष्य के जीवन की दार्शनिक परिभाषा देने का एक प्रयास है। इट इज़ अ ड्रामेटिक मेडिटेटिव पोएम सिंस इट नरेट्स एन इवेंट इमेजिनिंग अ फिलोसफर एज अ स्पीकर। ये एक प्रकार की ड्रामेटिक मेडिटेटिव पोएम है। ड्रामेटिक इसलिए क्योंकि इसमें दो जनों के बीच बातचीत है, मेनली तो एक ही व्यक्ति बोलता है, दूसरे को वो उपदेश दे रहा है। ड्रामेटिक मेडिटेटिव पोएम है सिंस इट नरेट्स एन इवेंट, क्यों? क्योंकि ये एक इवेंट की घटना की बताती है जिसमें एक फिलोसफर जो कि स्पीकर है, बोलने वाला है, इज़ इन कन्वर्सेशन टू अ गर्ल, वो एक गर्ल, छोटी लड़की से बातचीत कर रहा है, नेम्ड मार्गेट, मार्गेट नाम की इस लड़की से वो बातचीत कर रहा है। वी फाइंड कैरेक्टर, डायलॉग एंड सेटिंग एंड प्लॉट एज वेल इन द पोएम। इसमें करेक्टर हैं, दो करेक्टर हैं, डायलॉग है, सेटिंग है। सेटिंग ये है कि पतझड़ का टाइम है और मार्केट जो है उन फूलों पत्तों को गिरते हुए देखती है, अनलिविंग को देखते हुए वो उदास है, दुखी है, और प्लॉट भी इसमें है। सो ये पोएम अपने आप में ड्रामेटिक पोएम है, और ये इस पोएम के अंदर पोइट जो हैं अपनी स्प्रंग रिदम के ज़रिए ये शो करना चाहते हैं अपना फिलोसॉफिकल ज्ञान, बिकॉज ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, ही वॉज अ जेसुइट, सो ही इज़ showing his philosophical knowledge through this poem. सो पोएम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। पोएम का ये जो मैटर है, ये जो मटेरियल मैंने तैयार किया है, ये आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप इसे पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्प्रंग रिदम थोड़ा समझने में मुश्किल है, इसे समझाने के लिए क्लासरूम होना चाहिए, थोड़ा बोर्ड हो तो आसान रहता है। फिर भी आप इंटरनेट से और भी हेल्प ले सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और जब कक्षाएँ शुरू होंगी तो लिटरेरी टर्म्स में स्प्रंग रिदम जैसे टॉपिक जो हैं हम दोबारा रिकवर करेंगे, इन्हें दोबारा से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करें आपको कोई समस्या आए तो, और इस पोएम को आप पढ़ने का प्रयास करें। सिंपल पोएम है, इसमें रन ऑन लाइंस काफ़ी हैं और एक कन्वर्सेशन के ज़रिए शो किया गया है जो फिलोसफी शो करना चाहते हैं द पोइट। सो थैंक यू।